میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سواں گارڈن کی موجودہ مینیجنگ کمیٹی کا ایک اور بڑا کارنامہ، کمیونٹی سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ 200 سے زائد افراد کی گنجائش، اب مکین شادی، بیاہ، برتھ ڈے، منگنی وغیرہ کی تقریب منعقد کر سکیں گے۔ کمیونٹی سینٹر سواں گارڈن کی ادبی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا۔ اس موقع پر صدر سواں گارڈن الیاس خان، نائب صدر نواب خان اور ایم سی کے ارکان موجود تھے۔ عہدیداران نے خطاب کرتے ہوئے ایم سی کی کوششوں اور مکینوں کو دی جانے والی سہولتوں کا ذکر کیا۔ مینجمنٹ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سوسائٹی کو جہاں یہ آج پہنچی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ ان دونوں ساتھیوں کا اور ان کی جو ٹیم ہوگی اس کے ہاتھ بٹائیں اور اس سوسائٹی کو آگے لے کے چلیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ کرپٹ مافیا پھر آ گیا، سوسائٹی جو تباہ ہو چکی تھی اس کو انہوں نے سنبھالا، اس کو سواں گارڈن بنایا۔ آج میں چاہتا ہوں اور آپ بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یہ آگے ترقی کرے۔ کو راشن تقسیم کر رہے تھے، اس کے بعد ان کا پروگرام بنا، وہاں مجھے کام کرتے دیکھ کے کہ سوسائٹی میں بھی شاید میری ضرورت ہے، تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں وہاں پہ کوئی کام کر سکتی ہوں تو میں تیار ہوں آنے کے لیے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ مطلب جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی وہ میں نے پوری کی، اور جس میں سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ فیملی گالا پروگرام تھا، جو الیاس صاحب نے مجھے اتھارٹی دی تھی کہ میں اس کو ارینج کروں۔ وہ الحمدللہ ہمارا بہت اچھی طرح ہوا۔ 100-150 لوگ تھے جنہوں نے اسٹال بک کیے، اور جو زیادہ تر خواتین تھیں، اور وہ خواتین تھیں جو گھروں پہ آن لائن کام کیا کرتی تھیں۔ وہاں آ کے انہوں نے کافی تعداد میں اپنا ایکسپوجر کیا، اور ہمارا وہ پروگرام بہت اچھا رہا الحمدللہ، بچوں کے حساب سے بھی اور سارا۔ اس کے بعد ہم نے پھر وہ راشن ڈسٹریبیوشن اور وہ عیدی وغیرہ، ابھی ہمارا پروگرام جو ہے ایک اور ہے انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کا ٹری پلانٹیشن کا مین پارک میں، وہ ہم منگل کو کریں گے، جس میں زیادہ تر اسکول کے بچوں سے بھی ہم ٹریز لگوائیں گے۔ تو شام 4 بجے ہوگا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ وہاں آ سکتے ہیں وہ تمام لوگ آئیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے ایک دستکاری اسکول کے قیام کے لیے میں نے الیاس صاحب سے درخواست کی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر جو لوگ خواتین سیکھنا چاہیں گی وہاں سیکھ کے کچھ کر سکیں گی وہ کریں۔ پھر ہماری جو ایف بلاک کی ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد میں خواتین کی نزدیک یہاں کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کی، تو خواتین کو تراویح میں رمضان میں تراویح پڑھنے میں کافی مشکل ہوتی تھی۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی صدر صاحب سے کہ وہ کچھ کریں، تو انہوں نے درخواست انہیں دے دی تھی۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر الحمدللہ اس کی منظوری ہو گئی ہے، اور جلد ہی ہماری خواتین جو ہیں وہاں پہ نماز پڑھ سکیں گی۔ میں اپنی خواتین کا جو آئی ہیں یہاں پہ انتہائی شکر گزار ہوں، اور باقی جو بھی خواتین ہیں ہمارے یہاں کی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کے کچھ سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے کریں، تاکہ خواتین بھی اتنی ہی معاون ثابت ہو سکیں جس طرح کے ہمارے میل ممبرس کرتے ہیں۔ اور عورتوں کا اور مردوں کا ساتھ مل کے سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم یہ مثال قائم کریں گے۔ باقی الیاس صاحب سے میں انتہائی متاثر ہوں، ان کی محنت، ان کی
ایمانداری اور کوئی سٹینڈ لے کے اس کے اوپر جمے رہنا اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ ان کے مین مقاصد ہیں. جو میں نے دیکھا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے وہ، اور جس چیز پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں، جیسے مافیا کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے مافیا کے خلاف بات کی، چاہے اس کے لیے ان کے پاس منسٹر کی سفارشیں آئیں، چاہے ان کے پاس آئی جی کی سفارش آئے، انہوں نے اس کے سامنے کسی کی بھی سفارش نہیں سنی، صرف سچائی کا ساتھ دیا ہے. ان کا دفتر جو ہے وہ پورے وقت وہاں کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی آتے ہیں وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. 24 گھنٹے ان کے گھر کے اور دفتر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ حل کرتے ہیں. ٹائم کی کمی ہے اور یونس صاحب گھڑی گھڑی میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بس کریں. اللہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اپنے گھر کی حفاظت خود نہیں کریں گے، آپ کے اراؤنڈ پہ آپ حفاظت نہیں کریں گے، کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. میں نے شروع سے میری یہی تھا. آج آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ان لوگوں سے لڑے ہیں، کیا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کے سویا رہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہوں، میں اپنے دفتر جاؤں اور آؤں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا؟ یہ آپ کا بھی اتنا ہی حق تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جتنے یہاں مفاد پرست آئے ہیں، جتنے ٹولے آئے ہیں، انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا سائٹی کا. میں پہلی میٹنگ میں جب کرنل آزر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، سامنے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا، 2-3 بندے میرے سامنے آ گئے تھے، اور 6 مہینے کے اندر مسجد انوار مدینہ بن گئی تھی، لیکن باقی مسجدیں ساری جو ہیں ان کی جگہ بچ گئی تھی. آج ہم نے وہی مشن لے کے آگے گئے ہیں. آپ کے سامنے مسجد ابراہیم، وہ وہاں کمرشل پلاٹ بنے ہوئے تھے، ہم نے کینسل کیے، اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اس سائٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس وقت. اب موقع ہاتھ سے نہیں جائے گا. آپ نے اگر نہ کی تو یہ چور پھر آئیں گے. مجھے قطر کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی صدارت کی ضرورت ہے، نہ کسی سیکٹری شپ کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو آپ کے حقوق کی ضرورت ہے، آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. مسجد تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا، آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ انصر گوندل 10 کنال مسجد کی جگہ دے گا، ماں کے نام پہ دے گا. جو ماں کا نہیں ہو، میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑے لیڈر آ گئے، اور اللہ کے بندے تم سے بڑے بڑے لیڈر آئے. رمضان سٹی کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سندھزم یہاں نہ گزارے. ہم سے زیادہ سندھی کی کوئی خدمت نہیں کرتا. آپ نے یہ تعصب یہاں کریٹ کر لیں، خدا رہا اس سے بعد آ جائے، ورنہ یہاں آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم بھائی ہیں، ہم بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. وہ سندھ ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ سرحد ہو، وہ پنجاب ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ کشمیر ہو، ہم سب ایک ہیں. اور جب تک ہم ایک نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو، ہم قوم نہیں بن سکتے. ہم پہلے ہی بہت بڑی بڑی چیزوں میں گزر چکے ہیں. اس لیے اس گھر کو سنبھالنا، میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو آج میسج دے رہی ہوں، اگر آپ نے یہ گھر نہ سنبھالا، یہ دوبارہ آ گیا جس طرح یہ ہے، انہوں نے ڈویژن پیدا کر دی. وہ ابھی انہوں نے دعوت دی ہے کمیونٹی والے آ جائیں، تو ہم نان کمیونٹی والے ہیں، رہائشی ہم ہیں، بل ہم دیتے ہیں. پلازوں والے میجارٹی بل نہیں دیتی. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بل دو تو کہتے ہیں یہ بڑے ظالم آ گئے، ان کے سیوریج بند کر. میں نے کہ ان کی ہر چیز بند کرنی چاہیے جو لائٹ بل چارجز نہیں دیتا. میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے تمام معززین، شاہ صاحب کا، اہل سادات برادری کا، آبدی صاحب کا بھی، ندیم آبدی صاحب کا بھی، چودھری آزاد صاحب ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں، ان کے منشور کے مطابق ہم نے الیکشن لڑے. راجہ یونس صاحب بڑے فیئر اور صاف قسم کے انسان ہیں. انہیں میں نے بڑے قریب سے دیکھا جو اس وقت اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. فارن سروس سے آئے ہمارے نائب صدر نواب خان صاحب نے اور شاہی صاحب نے انہیں کنونس کیا، آن پہ بھی کنونس کیا، اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے، اور بونافائڈلی اتنی مشکل سیٹ پہ کام چلا رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے مسائل گراس روٹ لیول پر حل کرواتے ہیں جس حد تک ان سے پاسبل ہے. میں جناب اپنی بہن کا بھی مشکور ہوں جہاں رہا. آپ بلیو کریں، انہیں بھی میں نے بہت خیر دیکھا ہے اور محنتی دیکھا ہے.
मैं स्टेज पे बैठे मेरे भाई मियां वहीद साहब का भी मशकूर हूं कि इन्होंने जो मस्जिद की बात की उसमें मैं समझता हूं कि दिल खोल कर बयान क्या करूं, लाखों रुपया लगाया और तमाम ऑफर दे दी कि तमाम सेक्टरों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दे मेरी तरफ से। और खाली फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, बमा बिल्डिंग। अब मैं वो बात करना चाहता हूं कि हमने इलेक्शन क्यों लड़ा, उसकी वजह क्या थी। जो चौधरी साहब ने और शाही साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया है वो हक और हकीकत है। इस सोसाइटी को जिस अंदाज से माफिया ने लूटा है वो मैं आपको सिर्फ इन अल्फाजों के साथ बताना चाहता हूं कि इस सोसाइटी के टोटल 2401 प्लाट नक्शे पर था और कमर्शियल इंक्लूड करके 2800 3000 से क्रॉस नहीं हो सकता था, जो आज 9000 के करीब पहुंच रहा है। ये हर माफिया ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक करप्शन की, किसी ने 10 अरब की तो किसी ने 2 अरब की, किसी ने 4 अरब की। कसम खुदा की मैंने इस एक्सटेंशन को, जो माफिया की एक्सटेंशन थी, जो एक जाता था तो पीछे उसके साथ वाला दूसरा आके बैठता था, ये इनकी रूटीन थी। हर आने वाला पिछले को प्रोटेक्ट करता था। किसी अदारे, किसी अदालत में उसकी किसी किस्म की कोई रेपुटेशन या करप्शन नहीं बताई जाती थी। हमने इलेक्शन क्यों लड़ा? हमने इलेक्शन सिर्फ इन्हीं करप्ट लोगों के खातिर लड़ा। और ये वो चीज थी, ये वो जज्बा था। जब मैं यहाँ 2004-05 में आया तो चौधरी आजाद साहब का मंशूर देखा तो हमने उसी मंशूर पे अमल करते हुए इनका साथ दिया जो भी इलेक्शन लड़े। और आखिर मैंने चौधरी साहब के ही मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ा और आज 3 साल मुकम्मल होने के बाद ये बात साबित कर दी कि जिन लोगों ने अरबों रुपया लूटा उन्हें मैंने सरेआम नंगा किया है। जिन्होंने मुझे अरबों रुपए करोड़ों रुपए की ऑफर की, अपने सैकड़ों की कमर्शियल प्लाटों को ट्रांसफर करने के लिए दिया, कसम खुदा की जिंदगी उसके हाथ में है कि मैं नहीं माना। और आज मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है लेकिन मैंने इस माफिया के आगे नहीं झुका। मैंने इलेक्शन में एक अजीब माजरा देखा। पिछले इलेक्शन में इस माफिया ने आखिरी टाइम इस ब्लॉसम रोड पे मुझे शाही साहब ने जब बताया कि कुछ लोग इस प्लाजे पे बैठ के शाम 4 बजे से मीटिंग कर रहे हैं लियाज साहब, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि आप आगे उनसे मिलें और वो अपना हिस्सा भी में डालना चाहते हैं, अपने माफिया के गंदे अंडे हमें देना चाहते हैं। कसम खुदा की शाही साहब गवाह हैं कि एक बात नहीं सुनी, खून में जवाब दे दिया कि ये खून की नदियां बहा दें या मुझे जेल भेज दें। मैंने इनमें से एक कतरा पेशाब भी नहीं लेना। एक दम में अगर आप एक कतरा पेशाब शामिल करें तो कभी कोई शरीफ आदमी, मुसलमान इंसान आदमी नहीं पी सकता। ये वो लोग हैं ये किस मुंह से कहते हैं हमने 100% खाली एमसी के साथ इलेक्शन लड़ा। मेरी एमसी के लोगों का मैं मशहूर हूं, मैं आप लोगों का मशहूर हूं कि मेरी एमसी ने आज तक मेरे से किसी किस्म की प्लाट या इस किस्म की कोई फरमाइश नहीं की। मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं। अगर मैं इस माफिया में से कुछ लोगों को अपने साथ ले देता तो आज मैं ये समझता हूं कि ये एमसी 3 साल मुकम्मल नहीं करती, 30-31 साल बल्कि 33 साल इस समा गार्डन को बने हो चुके हैं। मैं कहता हूं कोई बता दे कि किसी ने 3 साल मुकम्मल बगैर करप्शन, बगैर किसी 48, 43 या 40 एनी अदर कोई करप्शन के दफात जो हम पे लगे हों। मैं ये कहता हूं अगर मैं अपने मंशूर को लूं तो मेरा मंशूर जो था वो वही मंशूर था जो आपके दिलों में है। जब पाकिस्तान बना आज 14 अगस्त अनकरीब है, लाखों माओ बहनों और बुजुर्गों ने अपनी जान का नजराना दिया। मैं ये समझता हूं कि ये हक और हकीकत है
कि उसके पीछे एक कॉज थी, हमारे भी पीछे एक कॉज थी, और वो कॉज ये थी कि इस माफिया को भगाना है। कसम खुदा की अपने दौर में एक अलॉट नहीं की, कोई प्लाट बाइफरकेट नहीं किया, कोई प्लाट क्रिएट नहीं किया, कोई रिहायशी टू कमर्शियल नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि मुझे कहते हैं कि ये बेवकूफ है। अगर करप्शन करना ही आप ये समझते हैं सदारत, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी सदारतों पे। मैंने अपनी एमसी और आप लोगों के कमांडर साहब सामने बैठे, हमने जब कब्रिस्तान लेने का इरादा किया तो पिछले 31 साल इस एमसी को बने, इस सभा गार्डन को बने हो चुके थे। किसी एमसी के जहन में नहीं आया कि कब्रिस्तान कहाँ है। अल्लाह ताला की फजल करम मेरी एमसी और आप लोगों के ताउन से हमने कब्रिस्तान लिया। मैं ये समझता हूँ बेग साहब जहाँ बैठे, हमारे सुभान साहब बैठे, हमारे और भी साथी अमानुल्लाह साहब बूढ़े लोग बैठे, कसम खुदा की इनसे पूछे जब हमने कब्रिस्तान लिया तो जो सुभान साहब बल्कि कब्र में उतरे मेरी वालदा की कब्र बनने से पहले, तो इन लोगों ने बेग साहब सामने बैठे आंसुओं से रोए। ये वो हकीकत थी, वो एक उस खुशी के आंसू थे कि आज हमें कब्रिस्तान मिला। मैं समझता हूँ उसके बाद हमने अपने मंशूर पे अमल बरामद करते हुए जो काम भी किए, महदूद वसाइल में हमने कोई करप्शन करके सोसाइटी को नहीं चलाया। जो सोसाइटी की पूरी मेहनत, लगन, तगदो के साथ आमदनी पॉसिबल हो सकती है, हमने उस आमदनी को कलेक्ट करके इखराजात पूरे किए। जो पैसा बचा डेवलपमेंट पे लगाया। मैं कहता हूँ हमने इन पार्कों को क्यों अबंडन किया। मेहरान पार्क को देख लें, जहाँ मेरे भाई बैठे जिन्होंने मुझे इत्तला दी कि जहाँ आपने खुदाई कराई है वहाँ माफिया ने भराई करा दी है। हमने उसके बावजूद वहाँ चल के अगले दिन अपनी खुदाइयाँ कराई और इतनी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो मेरी तरफ मैली आंख से देखे। उसके बाद हमने इब्राहिम मस्जिद को ले लें, सामने बैठे मियाँ साहब बैठे, पूरी हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो हमने अपने पूरे तगोदो के साथ की। हमने आपकी ए ब्लॉक की मस्जिद, उसकी जो जगह थी उसे हमने किस अंदाज से लिया। मियाँ साहब सामने बैठे हैं, अभी सी ब्लॉक की हमने जगह किस तरह ली, वो पीर साहब जो बने बैठे थे। मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ हमने क्यों किया? आप लोगों की खातिर, अपनी खातिर। एक दिल में कोई ईमान है जो हमने करना है। मुझे एक और जो खास गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हमारी सोसाइटी की ट्रांसफर रुकी हुई है। वो क्यों रुकी हुई है? क्यों जन्नत रोकी? मैं ऐलानिया तौर पे इस स्पीकर के थ्रू ऑडियो वीडियो के जरिए पैगाम दे रहा हूँ। अगर कोई मेरे में सच्चाई ना हो तो मैं ऐलान नहीं कर सकता। ये वो करप्शन है जिसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी मुतासिर हो रही है। अगर आज ट्रांसफर रुकी रही तो मैं समझता हूँ कि हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब सोसाइटी की आमदनी खत्म हो गई तो फिर हम किस तरह बाकी खर्चे चलाएंगे? तो होइए कि जनाब ये आप एच ब्लॉक में एक बहुत बड़ी स्टेट देख रहे हैं, कमर्शियल का जहाँ लगा है। अंसर गोंदल साहब बड़े मासूम से बन के कह रहे हैं, बताएं मैंने कौन सी करप्शन की? वो कहते हैं मैंने किसी मस्जिद का प्लाट नहीं लिया। मैं कहता हूं उन्होंने मस्जिद का प्लाट नहीं लिया, लेकिन जो लिया वो तो बता दें। आप देखें कि इन्होंने 43 प्लाट अंसर गोंदल ने और 8 रिहायशी और राजा अंसर ने 87 और बाकी ढेर सारा कमर्शियल बनाया। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात से कि सदर होते हुए अंसर गोंदल ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं सोसाइटी के साथ एफिलिएशन कर रहा हूं तो इसकी जमीन कहाँ है? सोसाइटी के पास जमीन कोई नहीं देगी। अगर दी भी गई तो 600 कुछ या राउंड अबाउट 500 कुछ कनाल में से टोटल 206 कनाल दी गई जो अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई। और वो क्यों दी गई? वो जब अदालत में फंसे तो उस वक्त वो थोड़ी सी जमीन कर दी, बाकी आज भी कोई नाम नहीं है। सीडीए की तरफ से कोई नक्शा पास नहीं है।
रजिस्ट्रार साहब की तरफ से कोई मंजूरी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एनओसी कैंसिल हो गया। आज हम परेशान फिर रहे हैं, आज हमारी ट्रांसफरें रुकी हुई है, हमारी हर चीज पे असर पड़ रहा है। हम एनओसी जारी नहीं कर सकते, कर्जे नहीं मिल सकते, हम नक्शा पास नहीं करा सकते। ये करप्शन की इंतहा है। 446 बिलियन की करप्शन की FIR हो चुकी है इन्हीं लोगों पे, कि किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने करप्शन नहीं की। 2,44 करोड़ रुपए की इन पे स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में करप्शन साबित हो गई है। अंसर दौलत साहब की प्रॉपर्टी DC ने 50A के तहत अटैच कर दी है, और ये कहते हैं हमने करप्शन नहीं की। शेड्यूल 4 में मैंने डाला, शेड्यूल 4 में मैंने डाला उन्हें, जो गेट पे उनकी गिरफ्तारी हुई। मैंने 2,44 करोड़ की स्पेशल रिपोर्ट बनाई। मैं ये कहता हूं, अगर ये माफिया आज भी हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठा है और हम खामोशी से उसका इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो इस गुस्से से क्लियर कट सोचा कि आप लोगों को मैं क्लियर कट कहता हूं, मेरे ये लोग जान के पैसे हैं। आज आपका एक कनाल का 5 मरले का प्लाट को छीन ले तो आपको गुस्सा चढ़ेगा। मैंने इनकी पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टियों को छीना हुआ है, मैंने इनकी कोई ट्रांसफर नहीं की। क्यों नहीं की? सब टोटल कब्जे की जगह। मैं ये समझता हूं कि जहां तक हक और हकीकत का ताल्लुक है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी हद पर हूं, तो मैं इलेक्शन में खड़ा होना नहीं चाहता। जो राजा यूनुस साहब ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में से अच्छे लोग आए और सदारत के लिए भी आए, सेक्रेटरी के लिए भी आए, MC के दीगर ओहदों के लिए भी आए। जहां तक मेरी आप लोगों से आज जाना गुजारिश है कि जो मैंने वक्त गुजारा, मैंने आप लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए गुजारा। मैं ये समझता हूं कि अगर आप लोग इस अंदाज से जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि माफिया आप पे मुसल्लत रहे और आप इसी तरह महकूमों की तरह जिंदगी गुजारें, मैंने इस सोसाइटी से सदर का प्रोटोकॉल खत्म किया, सेक्रेटरी का खत्म किया। कोई आपने नहीं देखा होगा कि मेरे साथ गार्ड है, मेरे साथ लैंड क्रूजर है। मैंने तो बिल्कुल एक शरीफ आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजारी है और गुजारूं। मैं आप लोगों से, टाइम कम है, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने जो भी तरक्याती काम किए, ये बड़ा पार्क है, ये हमने जो वजीर आजम साहब के प्रोग्राम में लिया और उसमें हमने जो काम किए 100% कानून और कायदे के मुताबिक किए। अगर हमने कहीं कोई मस्जिद बनाई तो वो कानून और कायदे के मुताबिक बनाई। अगर ये कम्युनिटी सेंटर बनाया तो इसमें भी आप लोगों के मफादात को मद्देनजर रखा। मैं चाहता हूँ वो पार्क हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, मुफाद आमा की दीगर कोई भी जगह है, वो हमारा एसेट है, आपका एसेट है, हमने इसे बचाना है। इंशाअल्लाह आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम जिस कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इससे हमने आप लोगों के लिए ये सोच के इस एरिया में कोई छोटी मोटी शादी, मंगनी या दीगर तकरीबात के लिए कोई जगह होनी चाहिए। आज इस हाल में आप 150, 200, 250 लोगों का फंक्शन दोनों हालों में कर सकते हैं। आज ये मैं चाहता हूँ कि हम इसकी बॉडी बनाएं, एक कमेटी बनाएं, उसके मुताबिक हम इसका इंतजाम दे दें। इसीलिए राजा साहब ने अभी आप लोगों से नाम लिए हैं। हम चाहते हैं कि कब्रिस्तान का जो इशू है, कब्रिस्तान हम चाहते हैं कि उसकी हम कमेटी हो। आज हम नहीं होंगे, 13 अगस्त को हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर से मार्क करा के कब्र की इजाजत ना लेनी पड़े। हम हर सेक्टर से 5-5 मेंबर लें और हम अपनी कमेटी बना के, मैं जब तक सदर हूं मैं उसका नोटिफिकेशन कर दूं ताकि हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े। आगोश के केस में देखें, 7 दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर ने साइन नहीं किए और 7 घंटे तक। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी आपके सामने जो बात कर रहा हूँ वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के कर रहा हूँ। 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली पूरे टेन्योर में। मैं कहता हूँ कि कुछ साबित कर दे।
मैं सदारत तो क्या जिंदगी छोड़ दूंगा। जहां तक ताल्लुक है आप लोगों का, आप मेरा सरमाया है। मैंने आप ही के साथ इन्हीं गलियों कूचों में जीना मरना है। इन्हीं फजाओं में मेरा भी और आपका जनाजा उठेगा। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में हमें एक जान होके अगले इलेक्शन में माफिया को भगाना है। मेरा मिशन ये हरगिज नहीं कि मैं आऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम में से लोग हों। मुझे लोग इसरार करते हैं कि जी आप इलेक्शन में आए, लेकिन मैं किस तरह आऊं जब तक मुझे आपका साथ ना हो। मैं जब सुनता हूं अच्छा काम करने के बाद भी उसका रिजल्ट गलत सुनता हूँ। एक ग्रुप ऐसा है कि ये जो हमने पार्क बनाया, खुदा की कसम इस पार्क पे हमारे 13-14 लाख से ऊपर खर्चा नहीं आया। बाकी तो हमने जो मट्टी काटी वो कब्रिस्तान के लिए दी। वो इस पार्क को कहते हैं कि जनाब इन्होंने 3 के 2.5 करोड़ रुपया लगा दिया और 35 करोड़ रुपया। मैं समझती हूँ झूठे प्रपगंडे करना। कब्रिस्तान के लिए अब जैसे कांग्रेस साहब कहते हैं कि जी उसकी जगह नहीं है कब्रिस्तान की। मैं कहता हूँ आप लोगों ने प्लाजे बना दिए। मैंने तो अपनी पहली कब्र माँ की बनाई और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से आज वहाँ 250 कब्रें हैं। मैं ये कहता हूँ कौन सा काम है जिसे आप बताएं मैंने गलती की है। अगर आप ये समझते हैं कि इस सोसाइटी में मैंने करप्शन करके आमदनी को बढ़ाना था तो वो मेरे मंशूर का हिस्सा ना था। मैंने तो जायज अंदाज से इस सोसाइटी में काम किए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस हक और हकीकत के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले इलेक्शन में इस माफिया को रिजेक्ट करें और हक और हकीकत का साथ दें। जरूरी नहीं कि मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, अब स्टेज से जाना नहीं है आपने। आप यहाँ ऐलान करें कि आप सदारत के लिए खड़े हो रहे हैं और फिर हम आपके लिए अच्छे साथियों की तलाश करें। तो जी आपका क्या राय है सबकी? रियाज साहब आज हमारे साथ कमिटमेंट करके जाएं। देखिए जी, राजा साहब मुझे बड़े और मेरे बहुत भाई जो सामने बैठे हैं मुझे बहुत जोर दिया है कि इलेक्शन में आए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही, जिंदगी का कोई पता नहीं, अगर जिंदगी रही तो मैं चाहता हूँ कि आप में से लोग आए और मैं उनका साथ दूं, मुकम्मल साथ दूं। अगर आप समझते हैं कि मुझे इलेक्शन में आना है तो मैंने सबसे पहले आप लोगों में से इलेक्शन में लाना है। अगर आप लोग देखें शाह साहब, जब आपके आप लोग जो पैगाम खान साहब दे रहे हैं कि पहले आपने इलेक्शन लड़ा अब हम आपको लड़ाना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी अकीदत है, लेकिन इस मामले का फैसला हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। जो हो सका मैं कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।